The next topic of physics chapter 5 is relative density, relative density and its measurement by Archimedes principle. See, you have studied density in class 8th, but still just to give you an idea, what is density? Density is the measure of how tightly the particles of a substance are packed within its given volume. If you take equal volumes of different materials, different substances such as wood, iron, zinc, water, glycerine, mercury, etc., and if you weigh them with the help of a physical balance, you will find that their masses are different. Means equal volumes of different substances have different masses. Mass of iron is much more than the mass of equal amount of wood. This is because the particles of ions are heavier and more closely packed, that's what I told you, than those of woods. In other words, iron is denser than woods. Density itself means that the particles are more tightly packed and also that they are heavier than the particles of wood. That's why iron is more denser than wood. In similar manner, if we take equal masses of cotton and lead, say 1 kg each, you notice that their volumes are different. The volume of cotton is much larger than the volume of an equal mass of lead. Cotton will occupy a huge space for 1 kg and lead will be like it will be fit in your palm. This is because the particles of lead are closely packed while those of cotton are very loose. In other words, lead is denser than cotton. Lead's density is more than cotton. So to explain equal volumes of different substances have different mass or equal mass of different substances have different volumes, we use a term called density. ठीक है? It is defined as follows: density of a substance is its mass per unit volume. Density is mass per unit volume. मतलब density मतलब mass upon volume, mass of the substance upon volume of the substance. It is a scalar quantity and its symbol is Greek letter rho, अभी तक जो हमने यूज किया है, और d. So if mass of a substance is m and volume is v, then the density rho is equal to m by v. Units of density. Density's units are units of mass upon units of volume. In SI system, the unit of mass is kilogram and the unit of volume is meter cube. So SI unit of density is kg per meter cube, written like this. In CGS system, the unit of mass is grams and unit of volume is centimeter cube. So in CGS system, the unit of density is gram per centimeter cube. And there is a relationship between these two. 1 kilogram per meter cube is 1 by 1000 gram per centimeter cube. So if you want to convert, let me give you a simple way of conversion. If you want to convert 1 kg per meter cube into gram per centimeter cube, you should divide by 1000. If you want to convert 1 gram per centimeter cube to 1 kg per meter cube, you should multiply by 1000. For example, density of water is 1000 kilogram per meter cube. It means that 1000 kilogram of water occupies a space of 1 meter cube, occupies a volume of 1 meter cube. If I want to convert this into gram per centimeter cube, I will divide it by 1000. So 1000 divided by 1000 is 1. 1 gram per centimeter cube. That means 1 gram of water occupies a volume of 1 centimeter cube. Right? So this is the application of density. This is, you can say, this is the use of density. It tells you about the heaviness of a substance per unit volume. Effect of temperature on density. See, most of the substances expand on heating and contract on cooling, but their mass remains the same. So density of most of the substances decrease
with the increase in temperature. On increase in temperature, the substances become lighter, they expand, and their density decreases. And on cooling, the substances contract, their volume decreases, mass remains the same, so density increases. But there is an exception. Exception is water. Water behaves in a very exceptional way. The behavior of water is very different due to its uneven expansion. Water, when cooled from high temperature, contracts up to 4 degrees Celsius. That is a normal behavior. But after 4 degrees Celsius, if you cool it further, it expands up to 0 degrees Celsius. From 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius on cooling water, it expands. So density of water gradually increases when it is cooled up to 4 degrees Celsius, and then the density of water starts decreasing when it is cooled further from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. So density of water is said to be maximum at 4 degrees Celsius. ये याद रखने वाली बात है, इसको लर्न करना कि डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब रहता है एट 4 डिग्री सेल्सियस. कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी पर मीटर. ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी is the density of a substance upon the density of water at 4 degrees Celsius. It's a ratio. Relative density is a ratio. So relative density does not have any unit. It is a number. Its value is density of a substance upon density of water at 4 degrees Celsius. Okay, now if I tell you कि इसका एक और एक फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, you will be happy because in numericals we require multiple formula. तो मैं तुम्हें और एक फॉर्मूला देता हूँ. देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो ये जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, और मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर. अब सपोज दोनों का वॉल्यूम सेम है और मैं रिलेटिव डेंसिटी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम कट हो जाएगा. सो मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. सो रिलेटिव डेंसिटी के तीन फॉर्मूला है. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. दो फॉर्मूला. रिलेटिव डेंसिटी का और एक ये लोग ने डेफिनेशन लिखा है. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज आल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. जो लास्ट वाला फॉर्मूला है उससे वो लोग ने ये डेफिनेशन नई वाली बनाई. तो तुम्हें ये दोनों फॉर्मूला डेंसिटी का याद रखना है. अच्छा, डेंसिटी का एक दूसरा नाम है, डेंसिटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी. रिलेटिव डेंसिटी, आई एम सॉरी, ये सारे जो चीजें मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव डेंसिटी के बारे में. मैं अगर ये मेंशन नहीं किया है तो आई एम सॉरी. रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो ये रिलेटिव डेंसिटी का यूज क्या है? पहले तो इसका यूनिट मैंने जैसे बताया कि इट्स अ रेशियो. इट्स अ प्योर रेशियो, इट्स अ नंबर, इट हैज नो यूनिट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तुम किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी ढूंढ सकते हो इफ यू नो इट्स डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम. ठीक है, डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इट्स इक्वल टू इट्स रिलेटिव डेंसिटी बट विदाउट एनी यूनिट. फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ वाटर in gram per centimeter cube is 1 gram per centimeter cube, and that means relative density of water is equal to 1. हमने क्या किया, सिर्फ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा ही नहीं, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उस सब्सटेंस की डेंसिटी की सीजीएस सिस्टम में, वो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू हमें लिख देनी है विदाउट एनी यूनिट. तो क्या बन जाता है वो उसका रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है,
Relative density is equal to the density of any substance in gram per centimeter cube but without its unit. ओके जैसे कि रिलेटिव अच्छा कॉपर की जो डेंसिटी है वो है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी हो गई जस्ट 8.9, नो नो यूनिट। अगर मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, पहले केजी पर मीटर क्यूब टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, you get 13.6 gram per centimeter cube. Now its relative density is just 13.6. Relative density of silver is 10.8, मतलब इसकी डेंसिटी है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिंपल। यहाँ पे डिफरेंस दिया है रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी का। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। Relative density of a substance is the ratio of density of that substance to the density of water at 4 degrees Celsius. Density is expressed in gram per centimeter cube or kilogram per meter cube. Relative density has no unit. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, जो डेफिनेशन है, और जो उसका रिलेशन है विद द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर, ये सब इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले मैंने डेंसिटी के बारे में बताया। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हो। ऑल्सो न्यूमेरिकल्स के लिए तो ये बहुत ही फेवरेबल चैप्टर है। यहाँ पे कुछ डेंसिटीज और रिलेटिव डेंसिटी दी गई है। सो एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे एक बाइफर्केशन ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ पे ये है वाटर की डेंसिटी 1001 और 1। वाटर की डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी जो भी सब्सटेंसेस की है वो सब वाटर में सिंक करेंगे, और वाटर की डेंसिटी से कम डेंसिटी जो भी सब्सटेंसेस की है वो सब वाटर में फ्लोट करते हैं। दैट इज एविडेंट, राइट। और तुम देखोगे कि न्यूमेरिकली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी न्यूमेरिकली सेम है, जो मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, तो इसमें से कुछ डेंसिटी प्लीज याद रखना, जैसे कि कॉर्क की, वुड की, आइस की, प्योर वाटर की, सी वाटर की, आयरन की, कॉपर की, सिल्वर की, मर्क्यूरी की। सिर्फ इतनी डेंसिटीज प्लीज लर्न करना। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके किसी सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज है, देखो रिलेटिव डेंसिटी का जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, सेकंड वाले फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे। दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये मैंने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था। तो यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मास ऑफ वॉल्यूम equal to that of mass of water of volume equal to that of the body obtained by finding the mass of water displaced by that body when it is completely immersed in water. Since a body when immersed in water displaces water equal to its own volume, तो हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है ना, मास ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ठीक है, अच्छा ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मास है। न्यूमरेटर में मास ऑफ बॉडी है, डिनोमिनेटर में मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी है। ये दोनों को हम मास की जगह पे क्या लिखेंगे, वेट। वेट ऑफ बॉडी अपॉन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, और ये जो अब नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बॉडी अपॉन लॉस इन वेट ऑफ बॉडी in water or upthrust, because the weight of body displaced by weight of water displaced by the body is nothing but the upthrust, and upthrust is equal to weight of body in air upon weight of body in water। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें रिलेटिव डेंसिटी का मिला है, जिससे हम कोई भी अननोन वॉल्यूम वाले सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला, वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। So to find relative density of a solid body using Archimedes principle, we have to weigh the body first in air and then in water. And if the weight of the body in air is W1
and weight in water is W2, then relative density is W1 upon W1 minus W2. ठीक है. Now we shall describe the procedure to determine the relative density of a solid in two cases. When the solid is denser than water, जब वो पूरा submerge हो जाता है, sink हो जाता है, and insoluble in it. And when the solid is denser and then water and soluble in it. ठीक है. अगर कोई सॉलिड डेंसर है वाटर से और सल्यूबल नहीं है वाटर में, मतलब सॉलिड सिंक करता है वाटर में और सॉलिड सल्यूबल नहीं है, इनसल्यूबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सॉलिड का वेट निकालेंगे एयर में, और एयर में उसका जो वेट आएगा W1. अब उसको एक बीम बैलेंस के एक आर्म से सस्पेंड करेंगे और फिर एक बीकर में उसको इमर्स करेंगे एंड विल टेक केयर दैट द beaker the solid does not touch the beaker's walls or the bottom. ठीक है. देन हम लोग सॉलिड का वेट निकालेंगे वाटर के अंदर W2. अब वेट ऑफ सॉलिड इन एयर आ जाएगा W1, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर इज W2. ऑफ कोर्स इट विल बी लेस बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट. सो लॉस इन वेट कितना होगा, W1 माइनस W2. सो रिलेटिव डेंसिटी इज W1 अपॉन W1 माइनस W2, जो हमने पहले फॉर्मूला डिराइव किया. अब अगर कोई सॉलिड डेंसर है वाटर से लेकिन उसमें सोल्यूबल है, तो हम कोई और लिक्विड लेंगे जिसकी रिलेटिव डेंसिटी तुम्हें पता है ऑलरेडी, नोन रिलेटिव डेंसिटी, जिसमें सॉलिड इनसोल्यूबल है, जैसे कि केरोसिन है या ऑयल है. ठीक है. और हमको अगर ये सॉलिड की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर अपॉन लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. मतलब फॉर्मूला ऊपर वाले जैसा ही है, लेकिन सिर्फ इसमें लिक्विड आ गया है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड द लास्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल. किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मेजर कर सकते हैं. देखो, रिलेटिव डेंसिटी इज वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर. दोनों लिक्विड्स का वॉल्यूम सेम होना चाहिए. By Archimedes' principle, if solid is immersed in liquid or water, it displaces liquid or water equal to its own volume. So ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. Weight of liquid displaced by a body upon weight of water displaced by the same body. ठीक है. That is weight of body in air minus weight of body in liquid. मतलब क्या है, upthrust on body when displaced in liquid upon upthrust on body when displaced in water. So इससे तुम्हें उस बॉडी की उस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी मिल जाए. सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज W1 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस W3. इसका एक्चुअली फुल प्रूफ, तुम्हें एक रिलेटिव डेंसिटी बॉटल दी गई थी, याद है, वो तुमने 8th में एक्सपेरिमेंट किया था. बट यहाँ पे थोड़ा सा वो लोग ने जल्दी जल्दी में एक फॉर्मूला बना के दे दिया है. देखो, रिमेंबर वन थिंग, इसके ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो भी बहुत सिलेक्टेड. बाकी थियोरेटिकली 5.11 ये वाला पार्ट और 5.10 ये वाला पार्ट, यहाँ से थियोरेटिकली क्वेश्चंस पूछना बहुत कम होगा. इससे पहले वाले में कुछ डेफिनेशंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इस पार्ट में थियोरेटिकल क्वेश्चंस, गिव रीजंस, ये सब नहीं आएगा. मोस्टली न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग करने वाले हैं. ठीक है. सो ये पार्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया. इसमें सिर्फ फॉर्मूले थे, अलग अलग टाइप के, रिलेटिव डेंसिटी, उसका मीनिंग, उसके एसआई यूनिट्स, ये सब था. तुम लोग इसको नोट कर लोगे जो भी मैंने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात होगी. तो तुम्हारे लिए ये जो इसका एक्सरसाइज है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा. हाँ, न्यूमेरिकल्स आई एम गोइंग टू post little later. First I am covering the theory. ठीक है. See you in the next video. Bye bye.